Hello everyone, welcome back to another video of Arya Shorthand. I hope you all are doing great. आज हम लोग एक डिक्टेशन करेंगे और जैसे हम लोग अपनी क्लास में करवाते हैं डिक्टेशन की एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते हैं, वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। तो अगर आपको डिक्टेशन करने के बाद में समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कैपिटल कब बनेगा, क्यों बनेगा और किसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगी डिक्टेशन करने के बाद। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द सेशन। गेट रेडी फॉर डिक्टेशन। 5 seconds to go. Start. Madam, there was also a reference to unemployment, which I agree is a very serious problem which requires serious attention. Our government has certainly given it the desired attention and taken up those programs which have helped in generating employment both in the rural areas and in the urban areas. According to my friend, the number of unemployed is increasing. Maybe compared to 1947 and now, yes. But he must not forget that the India of 2000 is not the India of 1947. The face of India has changed. The face of our rural India has changed. Our population, madam, has more than trebled in this intervening period. If we talk in terms of pure mathematics, then the entire population of India as on 15th August 1947 has been brought above the poverty line. But what have they themselves been doing for the poor and for the unemployed both in West Bengal and in Tripura? Have unemployment and poverty vanished from West Bengal? Has it vanished in Tripura? In the case of West Bengal, it is the one state in India where the economy has been most mismanaged, where employment is given not keeping in view of the deserving nature of a case, not keeping in view the social and economic plight of an individual, but whether he holds the red carpet of the CPI-M or not. The same were appointing party cadres as school teachers without any school buildings, denying employment to genuine unemployed youth because the people are more inclined towards the Congress government. These friends on the other side are becoming upset. Upset to an extent that they have refused to accept the verdict of the people. They have refused to accept the mandate given by the people to Congress party, even in the latest election in Tripura. Madam, coming back to the situation which prevailed last year, it is a matter of concern that we continue to have a serious challenge posed by the fundamentalists. It is well known that they have been getting the assistance from across the border, where training camps have been set up. They are setting weapons from there, and innocent people, including women and children, are becoming increasingly the victims of such forces.
We condemn this outside interference and assistance, and we should not have any reservation. Sir, the other threat which we face because of the military build up across our borders is also a threat for all of us to face. While I will dwell on it later, what I find is that friends on the other side sometimes ignore or refuse to accept that it is equally their responsibility to be one with the government on these issues, those issues which concern all of us as a nation. Last year, we have also seen the worst drought of the century, more severe than what was there in 1967. The drought affected 240 districts in the country. In some parts of the Saurashtra and Rajasthan, it was for the third or fourth successive year that the drought was there. And in Bengal, Assam, and parts of Bihar do had floods. It was a great challenge, and I commend the government for having geared itself up. The government did not for a moment shy away from its responsibilities. In spite of the enormity of the challenge, the situation was met effectively. We all know with what promptness the central teams were dispatched to all the affected states to assess the damage or the loss. Timely assistance was provided to the people, particularly to the farmers. The public distribution system was strengthened. Water was made available. Essential commodities were made available, and there was no panic. In any other country, particularly in a developing country, a crisis of this magnitude would have resulted in panic. But here we commend the government for having weathered the storm. And in addition to that, for the alertness with which the counter fiscal measures have been taken and financial discipline introduced in the country to check the inflationary trend. I will not go into details about the economic achievements which have been mentioned in detail by my esteemed colleague. But may I say that this challenge of drought is certainly not over. We must never be complacent. We have to invoke the latest technology to unearth our hidden groundwater resources. We have to ensure adequate growth in production of fodder and also strengthen our public distribution system. I have no doubt that the government, which has demonstrated clearly its abilities and its determination, will be able to do it. I may briefly mention about some of the very significant achievements during 1988. In spite of all challenges, we expect that an industrial growth of 8 to 9%. This is commendable, and I hope our friends on the other side, though they oppose this motion, will not disagree with something which is so visible and clear. Stop. तो डिक्टेशन करने के बाद अब हम देखते हैं ये टॉपिक क्या था। ये एक पार्लियामेंट्री डिबेट थी, जो लोकसभा स्पीच होती है वो थी, ठीक है। और ये स्पीकर क्या बताना चाहता है यहाँ पर
में मेन मैसेज क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिव है और कंट्री की इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रही है। ओपोजिशन सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रही है। तो ये डिटेल में आपको यहाँ पर स्पीच मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरा रिलेट किया है। ओके, तो अब इसमें क्या ध्यान देना है, देखो सबसे पहली बात आप लोग को लिसनिंग स्किल थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। आपको अपनी जो आउटलाइंस है उस आउटलाइन में क्या देखना है, आपको जो आपके फ्रेजेस होते हैं ट्राई करो कि आप फ्रेजेस को एक साथ सुनो। ओके, और इसको एक साथ ही लिखो, टाइप करो। ओके, तो आपको फ्रेजेस साथ में सुनने हैं और साथ में ही इसको लिखना है, बनाना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्रेजेस दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर है देयर वॉज ऑल्सो, ये फ्रेज है। उसके बाद आपका वेरी सीरियस फ्रेज है। आपको एजुकेशन के अंदर जितने भी आपको फ्रेजेस दिखाई दे उन सबकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की आउटलाइन ये रही, अनएम्प्लॉयमेंट एन एम और एम एन पी की खास। ओके, तो ये आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद वेरी सीरियस हो गया। अब इसमें एक स्पेशल आउटलाइन आपको शो हो रही होगी, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में इन्होंने क्या बनाया है, पी आर गे आर और डबलिंग करके गे आर के बाद आपका एस का सर्कल। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोग्राम्स। ओके, प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस में हम नॉर्मल जो आपका गे की आउटलाइन होती है वो आपकी नॉर्मल बनती है लेंथ इसकी, लेकिन जो प्रोग्राम्स है उसमें हम गे की डबलिंग कर देते हैं। ये जी नहीं है, इसको हम गे रीड करते हैं। ओके, अगर आपने शॉर्ट एंड अच्छे से बेसिक किया है तो आपको पता होगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन गे है। ओके, ग। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे यहाँ पर और भी फ्रेजेस आपको शो होंगे, जैसे कि यहाँ पर है रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज, इसमें आप क्या बनाओगे, पहले तो आप इसमें बनाओगे आर डबलिंग करके और एरियाज में आप आर डाउनवर्ड देन एस का सर्कल। अर्बन एरियाज, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड एक फ्रेज बन जाता है, माई बनाएंगे और फ्रेंड में एफ आर और एन की हाविंग कर, एफ आर की हाविंग एन का हुक। नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ में नंबर बनता है थ्रू द लाइन और एफ का हुक, नंबर ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे और कौन कौन से फ्रेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उन सब की फ्रेजेस की प्रैक्टिस करोगे। जैसे यहाँ पर है मोर देन, मोर देन, कि जब भी आपका देन किसी वर्ड के साथ आता है तो हम इसमें एन का हुक यूज करते हैं। ओके, तो हम मोर देन में भी एन का ही हुक यूज करेंगे। ओके, अदर देन, अदर बनाया ऑन द लाइन और देन के लिए हमने इसमें एन का हुक ऐड करना, अदर देन। तो ये आपका देन के लिए है, देन में जब भी आपका कोई वर्ड साथ में होगा तो हम इसमें एन का हुक यूज करेंगे देन के लिए। ओके, फ्रेजेस में नेक्स्ट आपके जो फ्रेजेस हैं वो हैं और बाकी दिस वन, अगर आप इसको देखोगे सोशल एंड इकोनॉमिक, ये रहा आपका फ्रेज, सोशल बनाया ऐसे और इकोनॉमिक में के एन का हुक और फिर सोशल एंड इकोनॉमिक, ये आपका हो गया फ्रेज। नेक्स्ट, ये सारे जो आपको टफ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी। ओके, कांग्रेस पार्टी, ये जो पार्टी वर्ड आता है, पार्टी के लिए हम टी का स्ट्रोक यूज करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, टी वाला स्ट्रोक इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी अदर वर्ड के साथ, जैसे कांग्रेस बनाया और पार्टी के लिए इसे इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, तो पार्टी के लिए जब भी आप बनाओगे तो पार्टी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस टी से इसको कट करना है। नेक्स्ट, इट इज ए मैटर, इट इज ए मैटर, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा फ्रेज है। इट इज ए मैटर, तो ये आपका बार बार रिपीट होता है, तो इस पे क्या बनाना है आपको, टी वाला स्ट्रोक, एस का सर्कल देन एम की डबल, इट इज ए मैटर। ओके, नेक्स्ट, इट इज वेल नोन, इट इज वेल नोन दैट दे हैव बीन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इट इज वेल नोन की, तो इट इज वेल में एल बनाएंगे और नोन में एन और एन का हुक बनेगा, इट इज वेल, इट इज वेल। ओके, नेक्स्ट है आपका दे हैव, दे के साथ अगर हैव आता है तो हम इसमें दे की डबलिंग कर देते हैं ऑन एस, दे हैव बीन हो गया तो यहाँ पर एन का हुक लगा देंगे, दे हैव बीन, दे हैव। नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट ये पूरा मिल जाएगा इसमें पैसेज में आपको आउटलाइंस, आई हैव नो डाउट, ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेजेस हैं इसके अंदर जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये फ्रेजेस जो होते हैं वो आपके नेक्स्ट डिक्टेशंस में भी काम आते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन में आपको ये देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का आपको बस ये ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस तो आपको वो वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखना है। ओके, कैपिटल में लिखना है बिगिनिंग में। ठीक है, जैसे कि मैडम से स्टार्ट हो रहा है तो एम इसका कैपिटल होगा, सर से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसका एस कैपिटल करेंगे। ओके, कोई भी वर्ड आपका कैपिटल होगा जब भी वो बिगिनिंग में आएगा। नेक्स्ट आपका आई हमेशा कैपिटल रहता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के जो नेम होंगे जैसे सिचुएशन में आया है इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल। ओके, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट नेम का भी, और जो आपकी कंट्रीज नेम है उन सब के आपके कैपिटल बनेंगे। वेस्ट बंगाल आया था इसके अंदर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का डब्ल्यू और बी दोनों कैपिटल। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा का ई कैपिटल। ठीक है, तो आपको स्टेट नेम, कंट्री नेम इन सब को हमेशा कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट आपका कैपिटल और क्या क्या चीजें होंगी, आपकी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि कोई भी चीजें हैं जैसे बॉडीज है कोई भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज में कैसे हो सकता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वर्ड है ना, गवर्नमेंट वर्ड, तो वो भी आपका हमेशा कैपिटल बनता है एन में। ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा कैपिटल होगा। कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस का के कैपिटल और गवर्नमेंट का जी कैपिटल। सेंट्रल टीम, सेंट्रल टीम्स, ये सेंट्रल के बारे में बात कर रहा है। टीम्स कौन सी है, सेंट्रल की, तो सेंट्रल में सी कैपिटल होगा, टीम्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपका कैपिटल होगा। जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो आपकी कैपिटल होंगी, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो आपकी कैपिटल होंगी, और जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म्स होगा वो आपका कैपिटल रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में जैसे इसमें आया था CPI है ना, CPI, तो ये भी आपका कैपिटल होगा। कांग्रेस अकेला आ रहा है तो भी कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा। मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, ठीक है, कैपिटल होंगे। डेज नेम कैपिटल होंगे, जैसे इसमें आया था आपका स्टेशन में 15 अगस्त, तो अगस्त का ए कैपिटल। ओके, डेट्स जो होंगी वो तो आपको पता ही है, डेट्स तो आपको 1947 ऐसे लिखना है। आपका नेशनैलिटी या फिर ऑफिशियल टाइटल्स होंगे वो भी आपके कैपिटल लिखे जाएंगे। ऑफिशियल टाइटल्स का मतलब है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे मैडम है, मैडम आपका कैपिटल लिखा जाएगा। ओके, और सर है, सर का एस कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये आपके ऑफिशियल टाइटल्स या नेशनैलिटी को दर्शाते हैं। ओके, तो ये आपके कैपिटल बनेंगे। और क्या चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, रिसोर्स, ये जो इकोनॉमी है, ठीक है, कुछ लोग इसे कैपिटल यूज कर लेते हैं लेकिन ये कैपिटल नहीं बनेगा क्योंकि ये सब आपके कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल नहीं होते। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एडजेक्टिव विद ही है आपका, तो इसलिए ये कैपिटल नहीं बनेगा। ओके, कौन सी स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, यहाँ पे एन को मत भूल जाना क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे एन लिखते ही नहीं है, तो एन नहीं भूलना है, गवर्नमेंट में एन आता है बीच में, गवर्नमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉय, ये जो हो गया आपका EMPLOY, अनएम्प्लॉय। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में ई हट जाता है, MENT लग जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भूलना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ई है ना इसकी जगह पे आई आ जाएगा, और क्या होगा, BI, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, BILIT, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी की आउटलाइन और जो आपका है स्पेलिंग है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव वाला वर्ड, सक्सेसिव, ठीक है। तो इसमें आपका डबल सी आता है और डबल एस आता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डबल सी भी लगाओ डबल एस भी लगाओ, सक्सेसिव, ओके। सक्सेस से याद रख सकते हो, सक्सेस, ओके। तो इसमें आप सक्सेसिव में IVE लगाओगे बस। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेशन, दोनों अलग अलग वर्ड है। तो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर ACH, ओके, और IE होता है, IE। ये जो IEEI वाले वर्ड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको IE और EI वाले वर्ड जो भी वर्ड्स हैं उनको अच्छे से कर लेना। कंप्लेसेंट का और स्पेलिंग याद रखना है, कंप्लेसेंट, ये CENT आता है, ठीक है, SANT नहीं आता। मिसमैनेज्ड, ये तो पता ही होगा वैसे, मिसमैनेज्ड, मिस बनाया फिर मैनेज फिर डी। फंडामेंटलिस्ट की आउटलाइन भी याद रखो और आपका स्पेलिंग भी याद रखो, फंडामेंटलिस्ट, ओके। तो इसकी आउटलाइन भी याद रखनी है और आपको इसका स्पेलिंग भी याद रखना है, फंडामेंटलिस्ट। और मिसमैनेज बता दिया, इंटरफेरेंस, ये भी थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, इंटर बनाया, इंटर की स्पेलिंग आती है, फेरेंस, फेरेंस, FERENC, ठीक है, इंटरफेरेंस, ऐसे याद रख सकते हो आप। That's all for today's video. Thanks for watching.